Now, students, I hope that you all are able to see here the screen. Students, जो आज हम करेंगे दैट्स इंडियन पॉलिटी के ऊपर पार्लियामेंट चैप्टर जो हमने पहले कर चुके हैं एग्जीक्यूटिव चैप्टर है उसके ऊपर एमसीक्यू करेंगे वन बाय वन. आई मेड दिस वीडियो approximately all the topics are covered in it and hopefully you all are enjoyed it. And moreover, if you want to give your answer you can type here. Just wait. This is the first question. Yes students, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट है, which according to you is very important for the democracy. Right to property, right to association, right to personal liberty और राइट टू क्रिटिसाइज. मैंने यहाँ पे 4 राइट्स के बारे में लिखा है, आपने बताना है अकॉर्डिंग टू यू. आपने चैट बॉक्स के बीच में बताना है, आंसर बताने की कोशिश करनी है अकॉर्डिंग टू यू विच राइट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी. देन आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाई योर आंसर इज राइट और रॉन्ग. यस, वेरी गुड विशाल. यस, या सुखविंदर बेटा, वेरी गुड. इसमें जो राइट टू पर्सनल लिबर्टी है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए. अगर आप देखोगे तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट. बाकी के जो राइट्स है दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट राइट टू पर्सनल लिबर्टी इज मोर इम्पोर्टेंट among all these for the democracy. Very good. So C is the right answer. Sorry, option is written wrong, but your right to personal liberty is right. When was the 42 amendment passed? आई होप दैट आप सभी को पता होगा कि 42 अमेंडमेंट क्या थी. Yes, try to give answer. I will give you 1 or 2 minutes. I will give you 1 minute actually, not 1 minute, less than 1 minute. I think 30 seconds are sufficient to give answer. 42 amendment. Yes, Helene has written 1972. Yes, yes. Let's see. The right answer is 76, 1976. स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं 42 अमेंडमेंट की, ये 42 अमेंडमेंट आफ्टर द इमरजेंसी स्टार्ट हुई थी. आफ्टर इमरजेंसी विच वाज इम्पोज्ड बाय इंदिरा गांधी 1975. उसके बाद ये अमेंडमेंट इंप्लीमेंट की गई थी, पास की गई थी. Just wait, some students are not facing some problem regarding. Hey, everything is okay from my side. I don't know why she is facing problem. This question we already had done. Yes. अगर मैं
अगर मैं बात करूं 42 अमेंडमेंट की, 42 अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट थी जिसमें अ, हमारे फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज को ऐड किया गया था। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हमारी जो प्रेम्बल थी, प्रेम्बल में जो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड्स ऐड किए गए थे, वो इस अमेंडमेंट के थ्रू किए गए थे। ये इमरजेंसी के बाद हुई थी, ये याद रखिए। 75 में इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद 76 में ये लगी थी, अमेंडमेंट पास हुई थी। सो सी हियर, इस तरह से हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay, tell the answer of the next question. According to you, how many rights does right to freedom have? Yes. How many rights does right to freedom have? You all know that the right to freedom. Okay, I will show the options also. These are your options. Try to give answer. Yes. The answer is 6. Yes. Very good. The answer is 6. अगर मैं बात करूँ राइट टू फ्रीडम की, तो राइट टू फ्रीडम के अंदर हमें मेनली 5 6 फ्रीडम दिए दिए जाते हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसी भी जगह पे असेंबल होने की परमिशन होती है हमें, कोई भी एसोसिएशन या अगर बात करूँ मैं यूनियन बनाने की हमें परमिशन होती है, टू मूव एनीवेयर। इस तरह की टोटल 6 फ्रीडम्स होती हैं जो हमें राइट टू फ्रीडम के बीच में मिलती हैं। वेरी गुड, many students have given the right answer. The answer is B, means 6. Okay, next question. Which is not a part of fundamental right? Means I mention some options here. You will tell to me which right according to you is not a part of fundamental rights. Try to give answer. First option is right to equality. Second option, right to particular freedoms. Third, right to equality, right against exploitation. And fourth one is right to property. Means there are mainly 3 rights are mentioned here. One option is wrong here. First one is right to equality. Is this part of fundamental rights or not? Second is right to particular freedoms, means right to freedom. Third is right against exploitation. Yes, all have given, I think, the right answer. The right answer is answer D, right to property. Now, at present, right to property is not a part of fundamental right. This is a part of legal right. Very good. So next question is, this is a very important question. Which committee first presented the demand for Bill of Right? I made all these questions from the NCERT, and I hope that these questions are very useful for you. Which committee first presented the demand for Bill of Right? These are your options. The first one is Jawaharlal Nehru Committee. Second one, Motilal Nehru Committee. Third one, Mahatma Gandhi Committee. And fourth one, Ambedkar Committee. You can write answer in the chat box. You can also mention the A, B, C, and D. Yes, very good. I think all the students have given the right answer only. Very good. The answer is B. Motilal Nehru Committee presented the demand for Bill of Right. Very good. The next one is, the next question is, when was the Bill of Rights first presented? When was the Bill of Right first time
presented? The answer, the options are A 1947, B 1950, C 1928, or D 1929. I will give you 15 seconds. I think you all are able to answer, give this answer easily. Yes. Vishal C. Helene also mentioned the 1928. Very good. Monica C. Ranjana Verma C. Very good, very good. Let's see. The correct answer is 1928. This was the year when the Bill of Rights first time presented. The next question, this is also very important question. This question is not important for your class. This is also important for, you can say that, for the future also. For the different competition exams, this question you can easily find in, I think, the most of the exams. Which part constitute fundamental rights in the Indian Constitution? As you know that we have total 22 parts and three are amended by also three parts are also included with the amendment. From that 22 parts, which part presented the fundamental rights? These are your options. Try to give answer. Yes, Rinvi Goyal. Very good. Already given the answer. Yes. Part 1, Part 4, Part 3, or Part 2? Very good. Very good, Vishal. Ranjana, Helene. Yes. I also want to discuss the different part. If I will explain about the Part 1. Part 1 is related to union and territory. Part 2 is related to citizenship. Part 3 is the fundamental right, and Part 4 is related to directive principle of state policies. This topic is very important. So the right answer is Part 3. Yes. Next question is, which among the following article of the Constitution of India abolished the untouchability? Yes, students, if you have any doubt, any question regarding that, you can write your question or doubt in the chat box. I will explain side by side. The question is, which among the following article constitute of India abolished the untouchability? I hope that you all know about the meaning of untouchability. And these are your options. You have 15 seconds to give this answer. Yes, Helene, very good. Urmi, Aniket, very good. Vishal also right answer. Yes. I also explained them about the different article. If I talk about the Article 15, Article 15 is related with the prohibit the discrimination, जो हमारी discrimination को रोकता है. 16 जो article है, that is related to equality of opportunity, means we all are equal to get the job, to get the opportunities. Article 17 is related to abolish untouchability, जो हमारे इंडिया से, हमारी कंट्री से अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, मीन्स खत्म करता है. उसके बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 17. एंड आर्टिकल 18 इज रिलेटेड टू स्टॉप द टाइटल्स, मीन्स के अभी आप बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल ओनली सिर्फ एजुकेशन और आर्मी वेयर को छोड़कर
किसी भी जगह पे टाइटल नहीं दिया जाएगा। मैं इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यस, वेरी गुड अनिकेत। आर्टिकल 18 अबॉलिश टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एजुकेशन आल्सो। इसके अलावा पहले जैसे किसी को अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, टाइटल दिया जाता था किसी, जैसे महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन का टाइटल मिला हुआ है, इस तरह के अभी किसी को भी कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। द राइट आंसर इज आर्टिकल 17। Next question, which among the following article to all public places to all the citizens? And this is your option. It means that all the publics can use or public places. Okay, Aniket. But your question is that why they is given to this last question related to last question के इनको क्यों दिया जाता है सिर्फ टाइटल, इसके अलावा बाकी सभी को बंद कर दिया गया, क्योंकि these two things are related to skill, or you can say that that is important for the country like a nation। अगर कोई सोल्जर या कोई आर्मी में है तो उनको परमवीर चक्र वगैरह दिया जाएगा, इनके अलावा कोई किसी को भी नहीं दिया जाएगा। आई होप दैट यू क्लियर दिस पॉइंट। यस, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आर्टिकल 15 एक्सप्लेन दैट वी कैन मूव एनीवेयर, और आर्टिकल 15 पार्ट 2 explain that we can use all the public places. Yes. Next question, which of the following right deal with the freedom of religion? जैसे कि बेटा आपको पता है हमारे टोटल 6 राइट हैं, तो उन राइट में से फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड वन राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट exploitation, against right against exploitation, fourth one is right to freedom of religion। इस तरह से चलते हुए हमारा फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड द लास्ट वन इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और विच राइट इज डील विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? ओके, टेल दिस। आर्टिकल 1, आर्टिकल 12 to 19, आर्टिकल 19 to 21, आर्टिकल 22 to 23, आर्टिकल 25 to 28। जैसे कि आपको पता है हमने अपने राइट 22 से लेकर 35 तक, तो 12 से लेकर 35 तक है, तो उसके अंदर अंदर हमने डिवाइड किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट 6 राइट्स। आपने बताना है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो राइट है हमारा, वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, उसके बीच में कौन से आर्टिकल आते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यूएन बी, अनिकेत, मोनिका, रीटा लेखी, यस वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिए हैं। द करेक्ट आंसर इज डी, आर्टिकल 25 to 28। जो हमें किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करने की फ्रीडम मिली हुई है वो इन आर्टिकल्स के बीच में लिखी हुई है। Yes, next question, who among the following has been given the power by the Constitution of India to impose reasonable instruction on the fundamental rights? क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल इंस्ट्रक्शन इंपोज करने का राइट किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, या पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है?
कौन हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों? Try to think and then give answer. Yes, Vishal has given answer B. Think and then give answer. Yes, Upneet has given C, Supreme Court. Yes, Vishal has given answer Parliament. Sukhvinder has given Parliament. थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखो. Who among the following has given the power to the Constitution of India? कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको पावर दी है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इंस्ट्रक्शंस, जो रीजनेबल इंस्ट्रक्शंस हैं वो लगा सकता है, इंपोज कर सकता है? Okay, let's see the answer. The answer is B, Parliament. Very good. जिन जिन्होंने बी आंसर दिया है. How many freedoms are granted by Article 19? I think this is the repeat answer. Give your answer. This is the repeating question. Repeat question. How many freedoms are granted by Article 19? Yes, Ranjana Verma, Vishal, Sukhvinder. Yes, all have given the right answer. 6 freedoms that's granted by Article 19. Freedom of press is a part of which fundamental right, or you can say that freedom of press is a part of which article of Constitution of India? आपने बताना है कि जो हमारी प्रेस को फ्रीडम मिलती है ये कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग होती है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19? Yes, Vishal has given the answer 19. Ranveer also 19. Haleen D 19 answer. Yes, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कैसे ये है जो आर्टिकल 19 है. दिस इज द पार्ट ऑफ राइट टू स्पीच. इसके अंदर 6 फ्रीडम मिली हुई हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू स्पीच उसके अंदर आता है. जो आर्टिकल 20 है वो हमारा है कि नो पर्सन कैन नॉट कन्विक्टेड फॉर द 2 टाइम्स. लाइक अगर किसी पर्सन को एक बार सजा मिल गई है उसको उसी काम के लिए ही दोबारा से सजा नहीं मिलेगी. आर्टिकल 20 इज रिलेटेड टू दैट. आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21A. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये आपको. राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ राइट आर्टिकल 21. मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं इसको राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल राइट के बीच में लिख देते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम. जो आर्टिकल 22 है ये प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर के साथ रिलेटेड है. आई होप आप सभी को याद हो गया होगा. आर्टिकल 22 इज रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स जो भी हम इंडिया के अंदर किसी भी ह्यूमन बीइंग को सेल परचेज नहीं कर सकते. आर्टिकल 20 इज रिलेटेड टू कि एक बंदे को एक काम के लिए गलत काम के लिए 2 बार
कोर्ट सजा नहीं दे सकता। आर्टिकल 21 is related to personal life or liberty. Right to education is a part of आर्टिकल 21A। आर्टिकल 19 के अंदर 6 फ्रीडम लिखी हुई हैं। फ्रॉम दैट 6 फ्रीडम, 1 फ्रीडम इज राइट टू स्पीच। और right to freedom of press is the part of right to speech. Article 19 is the answer of this question. Yes, next question है, in which among the following category right to vote can be placed? In which among the following category right to vote can be placed? इसको मैं हिंदी में बताऊंगा आपको। राइट टू वोट आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी कैटेगरी में आता है? फंडामेंटल राइट, right to vote is a fundamental right. This is a part of the constitutional right. This is the part of the fundamental duty, or this is the part of the legal right. Yes, very good. Right to vote is the part of which category which is given here? Right to vote is a fundamental right, constitutional right, fundamental duty, legal right. यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बेटा। राइट टू वोट इज द लीगल राइट, दिस इज नॉट फंडामेंटल राइट। आपने फंडामेंटल राइट पूरे कर लिए हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी आता है, उसके बाद राइट टू फ्रीडम आता है, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सिक्स्थ राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। यहाँ पे राइट टू वोट तो आया नहीं कहीं पे भी। दिस इज अ लीगल राइट। लेट्स सी द आंसर। यस, आई होप दैट सभी को पता लग गया होगा। राइट टू वोट इज द लीगल राइट। Okay. By which among the following amendment of Indian Constitution right to property was made a legal right from a fundamental right? पहले right to property जो था वो हमारा fundamental right था, बाद में उसको legal right बना दिया गया। पहले हमारे इंडिया में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। अब हमारी 6 कैटेगरी है फंडामेंटल राइट्स की, याद रखना है। राइट टू प्रॉपर्टी अभी नहीं है, अभी इसको लीगल राइट बना दिया गया है। कौन सी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया, आपने ये बताना है। 46, 44, 42nd अमेंडमेंट और 45 अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट वी ऑलरेडी हैव डन हियर इन दिस सेम वीडियो, हम कर चुके हैं। यस रंजना वर्मा, वेरी गुड। Yes, try to give answer. I am waiting. Yes, Article 31 is not mentioned here in the options. Yes, very good, very good. Very good. Let's see the correct answer. The correct answer is 44th amendment. स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को ये बाकी अमेंडमेंट के बारे में बताऊंगा ताकि आपको साइड बाय साइड याद भी होता जाए। अगर मैं बात करूं 42nd अमेंडमेंट की, ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, जिसके अंदर हमारे जो 3 मेन वर्ड थे जो हमारे पेम्बल के अंदर ऐड किए गए थे वो सभी आते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो आर्टिकल 45 है, दैट इज रिलेटेड विद द एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर 10 ईयर। जैसे हमारे हर साल 10 ईयर के लिए बढ़ाई जाती है रिजर्वेशन, जो दी जाती है रिजर्वेशन
10 ईयर के बाद उसको इवेल्युएट किया जाता है, क्या ये सही मतलब इसको हो आगे लेके जाने की जरूरत है या नहीं है, उसको देखते हुए उसको आगे एक्सटेंड किया जाता है। आर्टिकल सॉरी अमेंडमेंट 45 is related to that. Amendment 46 related to the sale tax, and amendment 44 is the answer of this. Under amendment 4 जो आपके राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट था उसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था। आई होप दैट यू ऑल हैव क्लियर। इसमें बेटा जो 2 मेन अमेंडमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, 42 एंड 44। 46 वो सेल टैक्स से रिलेटेड है, हमारे को लेना देना नहीं है इसके अंदर, वैसे भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो आर्टिकल अमेंडमेंट 45 है दैट से रिलेटेड विद द एक्सटेंशन ऑफ द रिजर्वेशन, ये हर 10 सालों के बाद एक अमेंडमेंट की जाती है और उसके अकॉर्डिंग ये आगे किया जाता है, तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारी अमेंडमेंट 42 है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अमेंडमेंट 44 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आगे जाके आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो या कोई भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की ऑलरेडी, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों में से मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन आता ही आता है। स्पेशली अगर पंजाब का पेपर होगा तो उसमें तो पक्का दिखेगा ही दिखेगा इसका आंसर। So next question is Article 25 to 28 of the Constitution are related with. Article 25 to 28 of the Constitution are related with. These are your options. Right to freedom, right to equality, freedom of religion, or constitutional remedies. You have 15 seconds to give this answer. Option A, right to freedom. Option B, right to equality. Option 3, freedom of religion. Option 4, constitutional remedies. Yes, very good. Yes, the correct answer is answer C, freedom of religion. बेटा आपने जब भी इसका आंसर देखना ना, आपने याद रखना है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो 12 से लेकर 35 तक हैं, और स्टार्टिंग में राइट टू इक्वालिटी से स्टार्ट होता है, आगे चलता चलता लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में जाता है। आपको हाफ आंसर वैसे ही पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following can suspend the fundamental rights? Means who has the power to suspend fundamental rights? This question is very important. Who has the right to suspend fundamental rights of people? Your options are Parliament, President, Prime Minister, Supreme Court. You have 15 seconds to give this answer. Yes, Neha, very good. Upneet, Ranveer, very good. Vishal has given the answer Parliament. Raveen, let's see which answer is correct. Some have given the answer Parliament, कुछ बच्चे प्रेसिडेंट दे रहे हैं। Let's see who has the power to suspend the fundamental rights. The correct answer is president. मैं आपको बताता हूं कैसे, क्योंकि एमरजेंसी लगाने का राइट किसके पास है? अगर मैं इसकी बात करूं, एमरजेंसी लगाने का राइट है प्रेसिडेंट के पास। ओनली प्रेसिडेंट कैन इम्पोज द एमरजेंसी।
और हमारे जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे दैट इज ड्यूरिंग द इमरजेंसी ओनली। फंडामेंटल राइट्स ऐसे हमारे राइट हैं, अगर मैं हिंदी में बात करूं मुडले अधिकार है, जो जिसके बगैर कुछ नहीं है। दीज आर द मेन राइट्स, बेसिक राइट्स, और ये सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे ही हमारे सस्पेंड हो सकते हैं। इसके अलावा वो किसी भी टाइम के अंदर सस्पेंड नहीं हो सकते। ओनली प्रेसिडेंट हैज द पावर। यस अनिकेत, वेरी गुड बेटा, एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। यस वेरी गुड। पर अभी भी जो राइट है ना, अभी हमारे सभी राइट नहीं किए हुए। अभी ये दिस इज नॉट अ नेशनल इमरजेंसी। आजकल के टाइम को हम नेशनल इमरजेंसी नहीं बोलेंगे। नेशनल इमरजेंसी में सबसे बड़ा राइट जो लोगों से चला जाता है दैट इज द राइट टू स्पीच। आज के टाइम में ये तो नहीं है कि आप बोल नहीं सकते गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी। आजकल के टाइम में तो बोल सकते हो। दीज आर द प्रॉब्लम, ड्यू टू द डिसीज द गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स। ये सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज समथिंग डिफरेंट। इसके अंदर क्या है कि जो हमारे मेन राइट्स हैं, लाइक फंडामेंटल मेन राइट इज राइट टू फ्रीडम, वो ही हमारा कैंसिल हो जाता है। हम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट ने जो कर रही है वो अपने आप करने दो, हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाएंगे इन दैट emergency period. Okay, now the session is over. I hope that yes, national emergency was imposed in the era of Indira Gandhi. Yes, very good Apneet beta, at the time of 1975 जो इंटरनल इमरजेंसी लगी थी, हमारी नेशनल इमरजेंसी 1975 में लगी थी। बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर मैं +2 वाले बच्चों का कोई टेस्ट वगैरह लेता हूँ ना, आप साथ साथ जुड़े रहें। रीजन क्या है उसका, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफी चीजें सेम होती हैं, इंटर रिलेटेड। अगर मैं आजकल की बात करूं तो आजकल में भी हमारी जो जनरल नॉलेज है, जो जनरल अवेयरनेस है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, चलो थैंक यू। सेशन लगाने के लिए बच्चों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। दैट्स व्हाई आई हैव यूजिंग दिस न्यू प्लेटफॉर्म। होपफुली यू ऑल हैव एंजॉयड and from tomorrow I will try to take daily this session for you. Maybe at a different time I will tell you at which time I will take your session. I will try to take your session for a small time but with more questions. Means within half an hour I will try to complete the session within the 45 minutes, but I will try to take near about 50 questions daily for discussion. Okay, bye, thank you.